आई थिंक वी वर डूइंग द टाइप्स ऑफ कंपनीज, उसमें हमने डोरमेंट कंपनी कर लिया था. डिड वी राइट मैम एनीथिंग डोरमेंट कंपनी? मैम यस. डोमेन कंपनी आपने समझा दिया था, आप बोल रही थी आज लिखवाएंगे आप. अच्छा ठीक है. यस मैम. ओके. लिखो बेटा. Dormant company is one. Dormant company is one which is formed for a future project, for a future project, or to hold an asset, or to hold an asset, or an intellectual property. To hold an asset or an intellectual property. Next point. It has no significant accounting transaction. It has no significant accounting transaction. Next. अनुष्का बेटा, आपको मैंने 2 आईडी से एंटर किया है. अनुष्का. No, ma'am, it's 2596 Anushka Garg. एक 2108 अनुष्का कौन है? Ma'am, that's me. There are two Okay, so we Anushkas have in two my case. Anushkas. Okay, okay, okay. Okay. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. Any company not doing business for the last 2 financial years, for the last 2 financial years, or doing regular business, or doing regular business but not filing financial statements, but not filing financial statements and annual returns and annual returns in the last 2 financial years is termed as inactive company. Inactive company. Full stop. Inactive company is a dormant company. It can remain as dormant company. It can remain as dormant company only up to 5 years. Only up to 5 years
Otherwise, the name struck off by registrar. Otherwise, name struck off by registrar. From records. Next, to apply for dormant status. To apply for dormant status. A special resolution of shareholders. A special resolution of shareholders has to be obtained. Has to be obtained. Next, it should not be a listed company. It should not be a listed company. Next, it should not have any outstanding public deposits. It should not have any outstanding public deposits, comma loans, comma tax dues, comma workmen's dues, or any inquiry slash investigation ordered against them. Next, registrar shall issue a certificate. Registrar shall issue a certificate allowing a dormant company status, allowing a dormant company status if all the requirements are met by the company. If all the requirements are met by the company. Next, dormant company shall have a minimum number. Dormant company shall have a minimum number of directors. जो भी minimum है, that is 2. Should have a minimum number of directors, comma, hold 2 board meetings in a year. Hold 2 board meetings in a year. And file annual returns. And file annual returns. Last point. Dormant company can revert to active status. Can revert to active status by applying
by applying to RSC, by applying to ROC, Registrar of Companies को हम short form में ROC कहते हैं. I hope you guys know. Yes, ma'am. Registrar of Companies को ROC कहते हैं. ROC inform फर्म का नाम है बेटा कैपिटल M, कैपिटल S, कैपिटल C. जितने भी मैनेजमेंट के फॉर्म्स होंगे ना बेटा, उसको हम MSC कहते हैं. कैपिटल M, कैपिटल S, कैपिटल C. 4. Number is 4. Along with the fees. मैम एक बार ये वाला पॉइंट रिपीट कर दिए. Dormant company can revert to active status by applying in form MSC4. M for Mumbai, S for Shimla, C for Calcutta. 4. Along with the fees. बोलना हूँ. ओके मैम, थैंक यू. Ma'am, actually, I have a doubt. Ma'am, every company need to show their financial status or to disclose their financial status or annual return every year. बेटा फाइनेंशियल स्टेटस और एनुअल रिटर्न दो अलग अलग चीजें हैं. Sorry, फाइनेंशियल ma'am. स्टेटमेंट बोल रहे हो आप या एनुअल रिटर्न बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? Ma'am, for filing the income tax return, they have to disclose their annual returns. ओके सुनो, ध्यान से सुनो विनीत. तुम लोगों के ना कॉन्सेप्ट्स थोड़े खराब है. आई डोंट नो, इंफॉर्मेशन नहीं मिली है इसलिए खराब है, या पढ़ा नहीं है इसलिए खराब है, या पता नहीं है. बट आधी इंफॉर्मेशन होती है विनीत तुम्हारे पास. जब हम कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं या कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें एनुअल रिटर्न डजंट मीन इनकम टैक्स रिटर्न. आई विल रिपीट. जब हम कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें जब भी मैं एनुअल रिटर्न की बात करूंगी, दैट डजंट मीन्स इनकम टैक्स रिटर्न. मैं इनकम टैक्स थोड़ी ना पढ़ा रही हूँ जो इनकम टैक्स रिटर्न की बात करूंगी. मैं तो एनुअल रिटर्न की बात कर रही हूँ. मैम दोनों में फर्क क्या होता है बेटा? जब हम इनकम टैक्स, कंपनी ने कितना कमाया, उस पर कितना इनकम पे टैक्स देना है, इसका स्लैब कैसे बनता है, कितना है, वो कैलकुलेट करके भेजूंगी तो वो इनकम टैक्स रिटर्न होता है. वो फाइल होता है बेटा CBDT के पास, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. आई होप आप इनकम टैक्स में पढ़ रहे होगे ये. मैम, एक्चुअली अभी हम सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज ही पढ़ रहे हैं. नहीं बेटा, ये तो इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा ना. CBDT एनुअल रिटर्न क्या होता है, यस मैम. इनकम टैक्स रिटर्न. ठीक है, तो ये हम फाइल करते हैं बेटा CBDT विच इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास. लेकिन कंपनी क्या कर रही है, उसने कितने स्पेशल रेजोल्यूशंस फाइल किए थे एक साल में, कितने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फाइल किए, अमेंडमेंट्स इन AOA मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने चेंजेस किए, ये AGM कब उन्होंने करी, ये सारी डिटेल्स जब ROC के पास एक साल में एक बार फाइल होती है ना, उसको हम एनुअल रिटर्न कहते हैं. ठीक है. यस मैम. मैम, इन्हें मतलब मैंडेटरी नहीं होता क्या हर साल करना? बिल्कुल मैंडेटरी है, बिल्कुल मैंडेटरी है. मैम, आपको हर साल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ROC के पास फाइल करनी होती हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है. देखो बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है कि कंपनी की ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सबको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं. ठीक है, कि कंपनी फाइनेंशियली कैसा कर रही है. दूसरा, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ROC जानना चाहता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जानना चाहता है कि भाई तुमने एक साल में अपनी कितनी बोर्ड मीटिंग्स करी, कौन सी डेट पर करी, आपने कौन सी क्या कहते हैं AGM कब करी, आपने डिविडेंड कब दिया, कितनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किए, कितने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए. मतलब एक पूरे साल में आपने कंपनी एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या किया है, कब किया है, उसकी इंफॉर्मेशन को फर्निश करना होता है. This information that we furnish is called annual return, which is filed to ROC every year. मैम कब फाइल होती है? September 30th.
के बाद हमारे पास टाइम होता है, उस तक हमें सारे रिटर्न वो करने हैं, एजीएम हो जानी चाहिए हमारी, और उसके बाद हम फाइल करते हैं एनुअल रिटर्न। मतलब इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वी नॉर्मली डू इट। September, October we file this return. Every company files this return, irrespective कि वो पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, गवर्नमेंट है, कोई भी है, वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर है, उसको अपने आरओसी के पास करना ही पड़ेगा। मैम डोमेन कंपनी के लिए देखो मैंडेटरी है या नहीं? डोमेन कंपनी ना दो तरह से होती हैं। एक, लोग खुद अपनी कंपनी को डोमेन बनाते हैं, मतलब एप्लीकेशन देते हैं और बोलते हैं कि देखो जी हमें डोमेन कंपनी बनाना है। ऐसा वो इसलिए करते हैं बेटा कि वो फॉर द टाइम बिंग उस प्रोजेक्ट को, उस कंपनी को इनएक्टिव करना चाहते हैं। ठीक है, तो आरओसी कहता है कि मैं आपको परमिशन देता हूँ, लेकिन 5 साल तक ही आप ये स्लीपिंग ब्यूटी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। 5 साल के बाद या तो तुम कंपनी बंद कर दो या एक्टिव हो जाओ। ये थोड़ी है कि तुम 10 साल कंपनी को सुला दो और उसके बाद कंपनी को रिवाइव कर लो, जब तुम्हारा मन करेगा रिवाइव कर लो, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, या कोई अगर रीजन जिससे आप जस्टिफाई कर सकते हो आरओसी को कि आप डोमेन स्टेटस में क्यों जा रहे हो, आरओसी सेटिस्फाई होगा, आपको स्टेटस दे देगा, लेकिन 5 साल तक ही देगा। ठीक है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कंपनी बनाते हैं और उसके बाद ना कंपनी को वाइंडिंग अप, लीगल वाइंडिंग अप करने से अच्छा है उसकी रिटर्न फाइल करना बंद कर देते हैं। आरओसी नोटिस पे नोटिस भेजेगा, भाई रिटर्न फाइल करो, रिटर्न फाइल करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो, आप उसका जवाब ही नहीं देते। आरओसी को गुस्सा आएगा, वो आपका नाम फाड़ के फेंक देगा अपने रजिस्टर में से कि ये कंपनी तो एक्टिव ही नहीं है, ये कंपनी को नोटिस पे नोटिस भेज रहा हूं मैं और कंपनी कुछ नहीं कर रही है, वो आपका कंपनी का नाम फाड़ कर फेंक देगा। ठीक है, तो यस मैम। कई लोग क्या करते हैं, कंपनी को बंद कराने का सस्ता टिकाऊ तरीका है कि उसको इनएक्टिव कर दो, जवाब मत दो, रजिस्ट्रार फाड़ के फेंक देगा और वाइंडिंग अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ऐसा हम तभी कर सकते हैं विनीत, जब कंपनी छोटी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, लिस्टेड ना हो, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो क्रेडिटर्स ही खा जाएंगे आपको कि आप डोमेंट करके से सकते हो, हमारे पैसे वापस कर दो, उसके बाद आप जो मर्जी करो। यस मैम। अगर कोई आउटसाइड लाइबिलिटी है तो वो कहेंगे हमारी लाइबिलिटी पे कर दो, उसके बाद आप इनएक्टिव हो जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो एक लिस्टेड कंपनी जो है ना वो कभी डोरमेंट नहीं हो सकती, एक दिन के लिए भी नहीं हो सकती, उनको मिलेगा ही नहीं ये ऑप्शन। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स करने ही नहीं देंगे। और अगर शेयर होल्डर्स 1% मान भी जाए किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, तो आरओसी आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा कि आप इसको डोरमेंट क्यों करना चाहते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप इनएक्टिव होना चाहते हो तो बंद कर दो ना यार, वाइंडिंग अप में चले जाओ, वापस कर दो पैसे। आप सॉल्वेंट हो ना, आपके पास एसेट्स हैं ना, वापस कर दो सबके पैसे, कंपनी बंद कर दो, वाइंडिंग अप में चले जाओ, डोरमेंट स्टेटस में क्यों जा रहे हो। ठीक है, यस मैम। so please guys don't confuse yourself with annual return filed to the ROC with the income tax return। मैं इनकम टैक्स रिटर्न की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, मैं एनुअल रिटर्न की बात कर रही हूँ। दैट इज फर्निशिंग इंफॉर्मेशन to the ROC about the company and the details in the last 1 year. It has nothing to do with income tax. ठीक है? Yes, ma'am. मैम आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ पूछो बेटा। मैम एक्चुअली कल आपने बताया था कि लाइक हमें कोई नेम रिजर्व करना है या कुछ ऐसा है तो हम कंपनीज बना के फिर छोड़ देते, डोमेन कंपनीज फाइल करके फिर छोड़ देते हैं 5 साल के लिए। तो मैम हाँ उस जी केस में तो एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करना होगा ना? बेटा देखो, मैंने आपसे कहा ना, एक होता है कि हम कंपनी अभी बनाई है हमने और उसको डोमेन स्टेटस में डाल दिया। बेटा अभी तो कंपनी में ना आपके पास कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, ना कंपनी चल रही है, ना बिजनेस चल रहा है। आपने सिर्फ नाम रिजर्व करने के लिए या कैपिटल रिजर्व करने के लिए या धीरे धीरे आप कैपिटल एक्वायर कर रहे हो, इसके लिए आप कंपनी का नाम लेके रख देते हो। ठीक है, इसमें आरओसी को प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि कोई आउटसाइड लायबिलिटी का स्टेक नहीं होता ना। There are not people, there are not outside liability which is involved, there is no public deposit debentures which are involved। मेरी बात समझ रहे हो? ये लोग तो इन्वॉल्व है नहीं, कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन तो है नहीं। आपने कंपनी खोली है इसलिए डोमेन स्टेटस अप्लाई किया है, आरओसी दे देगा।
लेकिन एक चल रही कंपनी को आप डोमेन स्टेटस के लिए अप्लाई करोगे, जो बिजनेस कर रही है, जो प्रॉफिट या लॉस कमा रही है, जो भी है कर रही है ना काम, उसको आप कहोगे कि डोमेन स्टेटस देना है, तो आरओसी पूछेगा ना भाई एक चलती हुई कंपनी का डोमेन स्टेटस क्यों देना है। समझ रहे हो? ये दो अलग अलग बातें हैं। आपने कंपनी का नाम रिजर्व करके रख दिया, आप अभी कॉलेज में हो, आप सोचते हो कि यार ये कंपनी का नाम मुझे शायद मिलेगा नहीं, मतलब 3 साल बाद अगर मैं बनाना चाहूंगी तो हो सकता है दिस नेम इज नॉट गिवन टू मी, तो आप आज ही नाम रिजर्व करके रख लेते हो, कंपनी खोल के रख देते हो और डोमेन स्टेटस अप्लाई कर देते हो। प्लीज नोट, आपने अभी तक कंपनी में कोई बिजनेस एक्टिविटी की नहीं है, कोई मेजर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, तो आपको आरओसी कहेगा ठीक है आप डोमेन स्टेटस रख लो 5 साल तक। कंपनी खोल लिया आपने, डोमेन स्टेटस रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक चलती हुई कंपनी जो कि जिसको 2 साल हो गए, 5 साल हो गए चलते हुए, आप उसको डोमेन स्टेटस में लेकर जाना चाहते हो, मतलब इनएक्टिव में लेकर जाना चाहते हो, आपको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना क्यों। ठीक है? यस मैम, थैंक यू मैम। क्लियर बच्चा? Yes, ma'am. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? बेटा नहीं सेटिस्फाई हुए हो, नहीं जवाब मिला है तो मुझसे पूछो, डाउट क्या है, क्या समझ नहीं आएगा, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। 10 बार पूछो, मैं 10 बार समझाऊंगी, बट प्लीज डोंट टेक होम योर डाउट्स। अगर पढ़ने कॉलेज में क्ला रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, उसके बाद भी कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो फिर फायदा क्या हुआ। आस्क मी 10 टाइम्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 10 टाइम्स टू यू। मुझे गुस्सा नहीं आता, बच्चों के डाउट्स पे कभी गुस्सा नहीं आएगा मुझे। तुम नहीं पढ़ोगे, सिर्फ लॉग इन करके रख दोगे क्लास को, हाँ तब बुरा लगेगा कि यार मैं इतने एफर्ट कर रही हूँ तुम्हें पढ़ाने के और तुम लोग बस लॉग इन करके फोन को साइड में रख रहे हो या लैपटॉप को साइड में रख रहे हो। आस्क एज मेनी डाउट्स एज यू वांट टू, related unrelated, it doesn't make a difference. Any other doubt? No, ma'am. Okay. Okay, write down the next type of company, government company. कॉन्सेप्ट समझ लेना। देखो लोगों को ना लगता है कि गवर्नमेंट कंपनी मीन्स जो गवर्नमेंट ने इनकॉर्पोरेट किया है या जो गवर्नमेंट ने बनाई है, ऐसा नहीं है बेटा। जिस भी कंपनी में गवर्नमेंट का स्टेक 51% होगा उसे हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। ठीक है, मान लो कि जैसे पहले बीएचईएल, आज भी बीएचईएल गवर्नमेंट कंपनी ही है, ठीक है, एनबीसीसी गवर्नमेंट कंपनी ही है, लेकिन वैसे बात कर रही हूँ कि ये कंपनीज जो है ना बेटा, ये गवर्नमेंट ने इनकॉर्पोरेट की, गवर्नमेंट ने बनाई और बाद में अपना स्टेक इसमें बेच दिया, लेकिन आज भी गवर्नमेंट 51% स्टेक इन कंपनीज में होल्ड करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट डजंट मीन कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही होल्ड करेगी या स्टेट गवर्नमेंट ही होल्ड करेगी या यूनियन गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी होल्ड करेगी। इट कैन बी कंबाइन करके भी और इट कैन बी सिंगल हैंडेड भी। मतलब 51% होल्ड करे, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके कर रही हैं या अलग अलग कर रही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट के पास 51% स्टेक होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर Yes. 2, अगर मान लो कि कोई कंपनी है और गवर्नमेंट ने उसे एक्वायर कर लिया, मतलब उसे खरीद लिया, उसके स्टेक्स खरीद लिए, और अगर 51% स्टेक खरीद लिए तो वो भले ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह फॉर्म हुई हो, लेकिन द मोमेंट गवर्नमेंट उसमें स्टेक खरीद लेगी वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। बट स्टेक हैज टू बी मोर देन 50%, ओनली देन। जैसे कई ऐसी कंपनीज हैं, एचडीएफसी हो गया या आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इसमें गवर्नमेंट का स्टेक है लेकिन बहुत कम है, 2, 4, 5% है, 10% है, तो इनको हम गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहेंगे। गवर्नमेंट के पास अगर किसी कंपनी का स्टेक है और वो 50% से कम है तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी। इट विल बी जस्ट दैट गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड और बॉट सर्टेन स्टेक्स इन अ कंपनी। ठीक है, Yes, ma'am. देखो, a government company is a company in which, मैंने तुम्हें सेक्शंस पहले से ही लिखवाए हुए हैं। Should I repeat the section again?
Ma'am, your wish. As per section 2 subsection 45, section 2 subsection 45 of the Companies Act 2013, obviously, of the Companies Act 2013, a government company is one where the government holds 51% of the paid up share capital. Where the government holds 51% of the paid up share capital by the central government or state government or jointly. Or jointly. Next point, a subsidiary of a government company shall also be treated as government company. Full stop. A government company can be incorporated as public or private company. एग्जाम्पल, सेल जो है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट कंपनी है. BHEL गवर्नमेंट कंपनी है. NTPC गवर्नमेंट कंपनी है. MMTC गवर्नमेंट कंपनी है. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ज़ैना, अब एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे. Yes, sure, ma'am. अगर गवर्नमेंट कंपनी है और उसके अंदर जो स्टेक है या शेयर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड किए हैं, तो ये शेयर्स किसके नाम पे होंगे? मैम, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम, हम गवर्नमेंट के शेयर्स नाम पे लिखेंगे, तो क्या हम शेयर्स पे लिखेंगे ओनर और द शेयर होल्डर इज सेंट्रल गवर्नमेंट? डू वी राइट दिस? मैम, अगर 51% होंगे तो लिख देंगे. हाँ. हम हर शेयर पे लिखेंगे ऑन द नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे लिखेंगे. हाँ मैम, फिर तो वही ओनर हो गए ना, अगर जिसकी 51% या उससे ज्यादा है. विनीत, हम किसके नाम पे शेयर इशू करेंगे? मैम एक्चुअली एक अथॉरिटी होगी. अथॉरिटी में से कुछ लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी होगी जो मैनेज करेगी शेयर्स को, उनके नाम पे वो शेयर्स खरीदे जाएंगे और उनके नाम पे ही अच्छा, वो तो शेयर. लोग जो है वो रिटायर हो गए तो वो शेयर अपने घर ले जाएंगे? नो मैम, बट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि जो मैम
सेंट्रल गवर्नमेंट में एक इंटीग्रल पार्ट पे जो जिसकी मतलब काफ़ी रीच है, या जो काफ़ी एक इंटीग्रल पार्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके नाम पे लिस्टेड किए मतलब जाएंगे। वो मैं अपने नाम पे कर सकती हूँ? यस मैम, इफ यू आर, बट मैम वो ऐसे नहीं हो सकता कि आप आपके नाम पे शेयर इशू है तो आप रिटायर हो गए तो पूरा ऑनरशिप आप ही के पास जाएगा। वो एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं रही। विनीत तुम्हारे पॉकेट में पैसे हैं अभी? डू यू हैव मनी राइट नाउ इन योर पॉकेट? नो मैम। तुम्हारे पास पॉकेट में भी पैसे नहीं है? नो मैम। वॉलेट में है? डू यू हैव मनी इन योर वॉलेट विनीत? कैश? यस मैम। हाउ मच? 200। ओके, ये 200 रुपीज तुमने मुझे दे दिए, उस पैसों पे नाम लिखा है कि ये विनीत के हैं? नो मैम, उस पर लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है? यस मैम, उस पर लिखा होता है ना, इशूड बाय आरबीआई। एग्जैक्टली, इशूड बाय आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखा। अच्छा, अब वो 200 रुपए तुमने मुझे दे दिए, तो ये पैसे तो मेरे हो गए भाई। रूल तो यही होता है ना कि जिसके पास पैसे होते हैं पैसे उसके होते हैं। यस मैम। तो ऐसी सिचुएशन में शेयर्स जिसके नाम पे होते हैं ना बेटा, यस मैम। शेयर्स उसी के होते हैं। मैम बट अगर हम किसी अथॉरिटी के नाम पे शेयर नहीं दे सकते तो कोई इंडिविजुअल होगा ना, कोई, या तो एक पूरी टीम होगी इंडिविजुअल की जिसके नाम पे वो शेयर्स ट्रांसफर किए जाएंगे, जो उन शेयर्स को मतलब मेंटेन करेगा, अपने पास संभाल के रखेगा। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? ऐसे तो होता नहीं ना बेटा, सॉरी बट ऐसा नहीं होता। मैम शेयर्स कैसे इशू होते हैं? शेयर्स डीमैट अकाउंट में जाते हैं, तो डीमैट अकाउंट किसके नाम पे खुला हुआ होगा कि भैया किसके डीमैट अकाउंट में शेयर है? मैम डीमेट अकाउंट एक इंडिविजुअल का होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है, आर्टिफिशियल पर्सन का एक डीमेट अकाउंट हो सकता है। बिल्कुल जी, हो सकता है। तो अब मैं किसके नाम पे इशू करूं शेयर्स? मैं शेयर होल्डर में किसका नाम लिखूं? यस रिदम, वी विल राइट रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया मैम, ये ऐसे कुछ नहीं कह सकते। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ ही नहीं सकता तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी नहीं आ सकता। रिदम, हम रिपब्लिक वर्ड यूज नहीं करते हैं, वी डोंट यूज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। Any person who wants to try the answer? रोहित, निमिषा, निखिल, अनुष्का, ममता? मैम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। No. Ma'am, President of India. name of parliament. मैम सेबी। Yes, Chetan. Yes. We will issue the shares on the name of President of India. He is the first citizen of the country. जो भी प्रेसिडेंट होता है बेटा वो फर्स्ट सिटीजन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, एंड द वाइफ ऑफ द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट लेडी. And if the president is a woman, then she is the first lady and the first citizen, and the husband will be the first citizen of male citizen of the country. तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई शेयर्स खरीदती है या कोई शेयर्स स्टेक में रखती है, तो उस सिचुएशन में हम प्लीज बेटा हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बच्चा। जैसे कि मैंने वो एग्जांपल दिया था कि कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट में से कोई टीम होगी या कोई एक इंडिविजुअल होगा जिसके नाम पे शेयर्स होंगे। नहीं, देखो देयर इज अ डिफरेंस विनीत कि हम टीम की बात करें या किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात करें। यस सेंट्रल प्रेसिडेंट इज नॉट द गवर्नमेंट, प्लीज नोट। बट मैम वो एक इंडिविजुअल है, अगर वो विनीत बात समझो, हम कह रहे हैं कि हम देखो आज बीजेपी गवर्नमेंट है सेंटर में, कल यस मैम। कांग्रेस हो जाएगी या आप हो जाएगी या कोई और पार्टी हो जाएगी। बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट मेड बाय द रूलिंग पार्टी। जो जीतता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर बनता है। प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन होता है बेटा, प्रेसिडेंट जो है वो ऐसे नहीं बनते हैं। प्रेसिडेंट के लिए इंडिया में इलेक्शंस नहीं होते हैं।
इसीलिए मैंने आपके आंसर को जस्टिफाई नहीं किया या आपको बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा। प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनेटेड पोजीशन, इट इज नॉट अ इलेक्टेड पोजीशन। दूसरी बात, हम नाम नहीं लिखते, हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं कि दीज शेयर्स आर हेल्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, द शेयर्स आर हेल्ड बाय द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। हम नाम नहीं लिखते हैं बेटा, हम सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखते हैं या गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट लिखते हैं स्टेट गवर्नमेंट के केस में। पीपल में कम, पीपल में गो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पोजीशन तो हमेशा रहेगी, गवर्नर ऑफ अ स्टेट तो पर्टिकुलर स्टेट तो हमेशा ही रहेगा। ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आई एम ग्लैड चेतन, ये तुक्का था चेतन या पता था? नहीं मैम, एक तुक्का? बार पहले भी मैम ने, नहीं मैम पहले भी मैम ने बताया हुआ है 12th क्लास में एक बार, तो वही याद था। मैम ने बताया था? यस मैम, बिजनेस की मैम ने ही बताया था। कौन से स्कूल से चेतन आप? मैम आर.डी. राजपाल, द्वारका सेक्टर 9। कहाँ पे? कहाँ पे? द्वारका, मैम द्वारका सेक्टर 9। द्वारका सेक्टर 9 में कौन सा स्कूल है? मैम आर.डी. राजपाल। नहीं, फेमस से बहुत कम टीचर्स बताती हैं ये वाली बात। इनफैक्ट कंपनी एक्ट में भी ये वाली बात बहुत कम टीचर्स बताती हैं। वेरी मैम फ्यू टीचर्स विल टेल यू कि शेयर्स किसके नाम पे होंगे। मैम वो भी कोई डिस्कशन चल रहा था गवर्नमेंट कंपनी पे, तो उनके मुंह से निकल गया। नहीं तो अच्छी बात है, इट्स अ गुड, आई अप्रिशिएट दैट, आई रियली अप्रिशिएट दैट। इनफैक्ट ये आपकी बुक में है नहीं कहीं, ये यस वाली मैम। चीज आपके बुक में नहीं है कहीं पे भी कि आप शेयर्स किसके नाम पे करते हो। बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मैं कंपनी सेक्रेटरी बनी तो मैंने ये वाली चीज नोटिस करी कि भाई शेयर्स जो हैं वो इंडिविजुअल के नाम पे होते हैं, कंपनी के नाम पे होते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में किसके नाम पे होते हैं। तो तब मैंने उसमें से निकाला तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो थोड़ा सा हम ऑफ द ट्रैक जाकर भी चीजें पढ़ेंगे, इट इज वेरी गुड। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बात बताओ गवर्नमेंट कंपनी में शेयर्स किसके नाम पे होते हैं। ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो, आई जस्ट कॉल फॉर अटेंडेंस। Also, I want to take a small assignment from you, assignment come open book test on Friday. Okay, ma'am. From the first chapter and kinds of company. It's going to be open book test. I hope you guys have the books by now. अब तो 1 महीने से ऊपर हो गया कॉलेज खुले हुए। Rhythm, you should have the नो books मैम। बच्चा। क्यों नहीं है? अगर बोरो करनी थी तो अभी भी बोरो कर सकते थे, अगर खरीदनी है तो खरीद लेते बेटा। लाइब्रेरी खुली हुई है, जाके कॉलेज की लाइब्रेरी से ले लो। मैं कल कॉलेज गई थी, कॉलेज में मैं देख कर आई हूँ, इतनी सारी कॉपीज पड़ी हैं। आप लोग क्यों नहीं ले रहे हो बुक? मैम मंडे रख लें। एनीवे मैं अभी जो ओपन बुक टेस्ट लूंगी वो तो मैंने तुम्हें उसके स्क्रीनशॉट भेजे हुए हैं, और बाकी सारी के मैं अभी आज भेज रही हूँ। टाइप्स ऑफ कंपनीज में जितना मैंने करा दिया है, आई विल सेंड द स्क्रीनशॉट। लेकिन वैसे बोल रही हूँ, प्लीज एक्वायर द बुक एज सुन एज पॉसिबल। ओके मैम। मैम फर्स्ट हाँ 2 जी, चैप्टर देंगी आप टेस्ट? हाँ जी बेटा, टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड फर्स्ट चैप्टर, दैट वाज कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर। ओके मैम। मैम फ्राइडे को। हाँ मैम जी, एक्चुअली मैम आपने बोला था कि मैम आप उनके ऑथर्स के नेम भेजेंगे, आपने भेजा नहीं अभी तक। 1 मिनट रुक बेटा, मैं साथ साथ ही भेजती हूँ। मैं ऐसे ना भूल जाती हूँ, रुक। हमने अर्लियर हमने भेजे थे ऑथर्स के नेम। मैं अब भी भेज रही हूँ तुझे, रुक जा।
ओके मैम। जी अभी भेज रही हूँ। इनको याद है मैंने लिखे थे और एक स्टूडेंट को भेजे भी थे। I'll send it to you. ठीक है बेटा? ओके मैम। आई थिंक मैंने थर्ड को ही मैम भेजे एमसी थे। कुचल वाला था। हाँ जी। मैं लाइब्रेरी से एमसी कुचल का लाया था वो। हाँ ठीक है, जो मर्जी लेकर आओ, बट लेकर तो आओ। बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई है ना। यस मैम। एक मैम टाइम पे आपने एक जब ही बुक ऑथर्स से के होता नाम है। लिखवाए थे, मैम हाँ आपने जी। जब बुक्स के मैम आपने जब ऑथर्स के नाम लिखवाए थे तब मेरे पास है वो वाले सारे ऑथर्स के नाम। हाँ तो बेटा वो एक बार इस पे भेज देना, ग्रुप पे भेज देना। जस्ट ठीक है फाइंडिंग। मैम। ओके मैम। मैम फ्राइडे को जो आप हमारा रिवीजन टेस्ट लेंगी तो उसमें मार्क्स मिलेंगे या फिर वो रिवीजन होगा बस? अरे नहीं, मार्क्स का है ऑब्वियसली। अच्छा ठीक है मैम। ओके थैंक यू। टाइम मैम पास कितने नहीं मार्क्स कर का? रहे? वो टेस्ट कितने मार्क्स का है या उसकी वेटेज कितनी है? टेस्ट मैम। 20 मार्क्स। और मैम एक बार वेटेज भी बता दो दोनों चैप्टर के। मैं कैलकुलेट कर लूंगी बेटा कि उसकी वेटेज कितनी होगी। हमारा जो इंटरनल असेसमेंट है ना बेटा, वो 25 मार्क्स का है। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। मैम मंडे को हो सकता है क्या, जब तक हम बुक्स ले नहीं लेंगे? बेटा, नहीं बेटा, फ्राइडे को ही लूंगी मैं। ओके I'll मैम, take it नो on प्रॉब्लम। Friday. ठीक है? ओपन बुक टेस्ट है। और जो मैंने अभिषेक तुम्हें वो भेजे है ना हैंडआउट्स स्क्रीनशॉट्स में, दे यस आर मैम। इनफ। दे आर ओके इनफ। मैम। बुक से ही तो है वो, बुक के ही तो पेजेस है। ठीक है? यस मैम। चलो, सी यू टुमारो। आ गया बेटा? जिसको पूछने थे नो वो ऑथर्स के नाम, दैट इज बीइंग सेंट टू यू ऑन द ग्रुप। ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। एक्सक्यूज मी चलो, मैम। सी यू टुमारो। हाँ बेटा बोलो। मैम कंपनी एंड कॉम्पनसेशन लॉ वाली बुक चल जाएगी? वो 2015 की है मेरे पास। नहीं यार, 16 में थोड़े से अमेंडमेंट्स हुए थे। चला ले अब फॉर द टाइम बीइंग, बट कोशिश कर अगर 2017-18 की मिल जाती है तो। ओके मैम। डू यू स्टे इन दिल्ली? यस मैम। कहाँ? मैम नियर कानपुर। तो मैं कल कॉलेज आई थी, मुझे बता देते बच्चा, मेरे पास 2-3 बुक्स पड़ी हैं, 2-3-4 बुक्स पड़ी हैं। अगर तुम लोगों को चाहिए कंपनी लॉ की बुक तो आई कैन ब्रिंग दोज बुक्स एंड दोज हु वांट टू टेक कैन टेक इट फ्रॉम मी। ओके मैम, आई विल टेक इट व्हेनेवर। मैम मी टू। ठीक है। देखो वो लेटेस्ट नहीं है, वो 2-3 साल पुरानी है, कुछ 1 साल पुरानी है। मेरे पास तो सैंपल कॉपी आती है ना फ्री, तो मेरे पास वो बुक्स पड़ी हैं, 2-3 पड़ी हैं। मैं तुम लोगों को दे दूंगी, आई डोंट माइंड शेयरिंग इट विद यू गाइस। तुम पढ़ना चाहते हो तो नथिंग लाइक दैट।
और जो ऑथर्स मैंने बोले हैं ना, उन्हीं ऑथर्स की पढ़ी हैं। ओके मैम। ठीक है, तो मैं बता दूंगी तुम लोगों को कि कब कॉलेज आ रही हूँ मैं नेक्स्ट, तो तुम लोग मुझसे कलेक्ट कर लेना। ओके, ऑफ कोर्स मैम। थैंक यू सो पुनीत, मच। आपको आप भी आ जाना, मैं उसी दिन आपको भी दे दूंगी। ओके मैम, ओके।